was not very healthy, contrary to the expectations. So it's been the potential and the power जो कि हम expect करना चाहते हैं हुकूमतों से इसको healthy state में रखें. अब ये some of these SOEs were inefficiencies was about almost $500 billion, 500 billion, just under it. And there are also profit-making enterprises as well. At an aggregate level, the losses have been close to about 200 billion. अगर आप companies को करें, तो अगर मुझसे आप पूछे aggregate profits कितने थे, तो वो 330 थे. 185 oil and gas companies से हमें profit नहीं, ये हम rupees की बात billions की बात कर रहे हैं. Rupees, these figures are in billion rupees. कुछ और शटर कर रहे होते हैं हम ये बताते हुए. These numbers are important. अब ये 2020 तक के numbers हैं, but hopefully in another 3 months का जो unit है वो updated figures ले आएंगे for the more recent years. और इसमें एक occasion होती है, वो ये होती है कि हमें सब companies से data लेना होता है और कुछ companies ने अपनी financial statements भी नहीं complete की होती हैं. Companies, of course, have suffered because of lack of autonomy, interference, weak management, limited accountability, inappropriate boards, because fit and proper criteria न ठीक से होता था, न board की composition है, और इसकी वजह से the period financial losses होते गए और quality service quality decline हो गई है companies की, और there has been drain on public resources. So Ministry of being the ultimate owner of these assets and Ministry of Finance rescue these companies when they are in trouble, because utilities होती हैं वो finally ministry से तो हो नहीं पाती. तो ये इस बहुत important था कि इनको एक hub में लाया जाए कि aggregate picture पता चले और इस hub में monitoring हो, और hub is a custodian of state policy, or it's a custodian of unit, it's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established जो कि इन ministers को help करेंगे. Our role is that of keeping the accounting of these companies right on time and facilitating the ministry. We're not going to interfere in the day-to-day functioning of these, but of course, when there are serious issues, the state-owned, the cabinet on state-owned enterprises, it's an institution where there will be operations going forward. पहले एक वैक्यूम होता था. अब ये भी आप कि मुख्तलिफ हुकूमत टाइम पे काफ़ी SOEs को स्ट्रक्चर भी किया, उनको भी किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी कराया, but there was a proper framework that was happening, and if you the law, there is a lot of in that. I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft policy. हमने approved इसलिए because we inherited the act, और हम इस कोशिश करेंगे कि और review incorporating comments of all the ministers, stakeholders, but Kamal has already disseminated and views public. Website हमारे होते थे, ministries भी किया, but चूँकि नई cabinet थी, तो
थोड़ा एक राउंड, वरना आज ही ये स्टेट अप्रूव हो जाती। एक्टेड बिट मोर कि हम और अपॉर्चुनिटी दें। ऑफ कोर्स डीकॉम्पोजिशन होंगे तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हैं, बट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन नंबर ऑफ 85 SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of profitable, as I have pointed out. If you look at those numbers, तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that ones that really matter are power 20, infrastructure 70, mineral, manufacturing, mining, and are another 4. And there is further breakdown. I'm sure we can give you more information after this briefing. इसमें credible organization जो top 10 profit making की लिस्ट बनाई हुई है, we have to share that list, और का डेटा भी हम आपको दें, और टॉप मेकिंग भी हैं जिन टर्न अराउंड के उसके या प्राइवेटाइजेशन के लिए। लेट मी फर्स्ट यू द हाइलाइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एक्ट 2023 which was promulgated February 2020. इसके मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नॉमिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि वंस यू द बोर्ड योर जॉब इज डन एंड यू पावर टू द बोर्ड पॉइंट एंड मेक श्योर बोर्ड अच्छी पॉइंट करनी है, उस पर आई विल टेल यू व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ। और मेजॉरिटी ऑफ द board members should be in. That has been the discipline in other jurisdiction. उनका security of tenure होना चाहिए, नहीं कि किसी को नाराज़ कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी controversial, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे fit and proper है। There are so many excuses that can be provided. और जो office of the chairperson of the board has to be separate from the CEO. और हमारे यहाँ कुछ कंपनीज यहाँ पे थी बट स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें CEO और जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड वाज द सेम, एंड आई डोंट थिंक दैट्स गुड प्रैक्टिस। फिर पेपरा रूल्स की एग्जेम्पशन इनको दी गई है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना इनिशियली टू गेट द रूल्स प्रॉपर, और उसकी exemption from the PEPRA rules has to be done in an effective manner. फिर कैबिनेट अप्रूवल देता है अगर उसकी ज़रूरत हो कैबिनेट की अप्रूवल की। अपॉइंटमेंट्स इज़ वेरी क्रिटिकल और उस पर काफ़ी नज़रसानी की जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और पॉलिसी डरे हैं उसको बड़ा सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उसकी अप्रूवल कैबिनेट से चाहिए, नो ad hoc interference in these institutions. Let me just talk about briefly CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance, क्योंकि इस वक्त एक जगह में आपको नहीं मिलता ये ना, you have to, एक तो outdated होता है, takes you long, so it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously, it will compile this data on a semi-annual and annual basis, और ये कोशिश करेंगे कि ये CMU रखे। जाहिर है the custodians of those is people like Qamar, because they are going to be here even when this government goes away, period ख़त्म हो जाएगा। हमारा काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous is continued
continue जो अच्छे वाले हैं, because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public companies corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely, partially engaged in strategic functions, or essential SOEs जो जहाँ पे private sector service नहीं provide कर सकेगा, वहाँ पे we will try to retain this but lift the game financially and operationally उनकी. Non-strategic SOEs को over the period we should phase out, as I see. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. आपको पता है, with the health of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed, because these guarantees cost us a lot and we have the limits on guarantees, as you know from the IMF program. और public service obligations को हमने ठीक से measure करना है, ठीक से record करना है, and we will have public service obligation pay more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are: no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper. आप इसको ज़रूर study करें. And obviously Qamar Saab is available for any Q&A moving forward. And I'm here for a little while. But I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2. But I'm going to sit with you, and if there are questions. प्लीज़ ये करेंगे सवाल मैंने. मुख्तसर काइंडली रखिएगा और अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करा दें. तो आप राइट से शुरू करते हैं. आप बताइए मेहताब हैदर साहब. मेरा नाम मेहताब है. मैं ये 200 से ज़्यादा SOEs हैं टोटल नंबर्स हैं, और आज से चंद साल पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली एक एनुअल रिपोर्ट इसके बारे में जारी करता था. जी. ये 2020 का एक तो फिगर जो है, लेटेस्ट फिगर्स क्यों नहीं अवेलेबल, उस पर कब तक काम हो जाएगा. और दूसरा ये बताएं कि ये लॉसेस में पिछले 3-4-5 साल से ये लॉसेस में, वरना पहले ओवरऑल एक एग्रीगेट प्रॉफिट होता था. तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो पावर सेक्टर की कंपनीज का. तो इसको आप कैसे जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे? PIA है और ये पावर सेक्टर की कंपनीज, ये कब तक आपका प्लान कब तक है, और कब तक आपने इनको जो है वो या डिस्पोज ऑफ करना है या इनको टर्न अराउंड करना है? जी, thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. जो आपने बताया है एक बर्डन है स्टेट गारंटीज का इन SOEs के लिए, कोई आपने कैलकुलेट किया है कि ये फॉरेन करेंसी में है क्योंकि सारा, तो कितना बर्डन कम किया जाएगा? देखें, अभी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा तो फिर उस पर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट डेफिनेटली वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गारंटीज दैट हैव बीन इशूड. जी. अच्छा मैडम, ये जो ये आपने SECP की जो रेगुलेशंस बनी थी ये 2013 में बनी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस टाइम से. बट जहाँ पे इम्प्लीमेंट को करने की कोशिश की गई, वहाँ पे बोर्ड्स ने जब उनके पास पावर्स आई तो उन्होंने अपनी मर्जी से CEOs लगाए, अपनी मर्जी से सैलरीज लगाई, स्वीट
के जो MDs हैं वो 1-1 करोड़ रुपया सैलरी ले रहे हैं और सारे स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। और जो बोर्ड्स हैं, अभी एक रिसेंटली एक केस आया LTDC में, बोर्ड ने ही अपने एक बंदे को MD लगा दिया LTDC में और उन्होंने वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ाई और उन्होंने ठेकों में भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। तो ये जो आप ये पावर देना चाह रही हैं, इस पर मैकेनिज्म क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? क्योंकि जो भी आप रूल्स ये लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर आके ज़्यादा बड़ा माफिया बन जाता है गवर्नमेंट एंटिटीज में। आप भी प्लीज़ क्वेश्चन दे दें पहले। जो आपने बात की है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी कमेटी डिसाइड करेगी स्ट्रेटेजिक कौन सी एसओईज है, नॉन स्ट्रेटेजिक है? दूसरा, अभी भी कई इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सेक्रेटरीज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और CEOs भी हैं, जिस तरह PTV कॉर्पोरेशन है, सेक्रेटरीज को वहाँ पे MD लगा दिया गया और चेयरमैन भी होंगे। और भी कई इदारे हैं जहाँ पर रास्त इंटरवेंशन है, सेक्रेटरीज बैठे हैं हर जगह पे, या JS बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, और सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये वो एक तो स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक कौन डिसाइड करेगा कि कौन से इदारे स्ट्रेटेजिक हैं, कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक है? क्योंकि माजी में ये हुआ है कि बाद इदारों को सिर्फ एक लाइन कह दिया था स्ट्रेटेजिक है, इसलिए उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। जी हाँ, थोड़ा एक और ले लेते हैं ना। चलें ये 3 यहाँ से ले लेते हैं। ये बता दें, फिर इम्पोर्टेंट है, फिर रह जाते हैं, फिर एक नहीं रहेंगे, लिखा हुआ है। ये फरमाइएगा कि जो इन इदारों के बहुत सारे इदारे हैं जिनमें हमेशा जब उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ यूनियन या लेबर यूनियन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, हार्डल क्रिएट करती हैं। तो जब आप इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा अगर उनको उनको निकालना है इन इदारों से, बाद एम्प्लॉयज़ को या रिटेन करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप भी बता दें। शहबाज मैम, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो PIA की बनने की सूरत इशू वो PIA, बाकी 2 चीज़ें ऑन एंड ऑफ बाकी चल रही हैं। PIA में अब बात हो रही है उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर आपका अपना क्या व्यू है? अगर ये करेंगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या उसका स्टेटस होगा? क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने आपसे कहा कि 13 बिलियन इन बिजनेस एज यूजुअल रफली उनकी मंथली उनकी नीड है। सेकेंडली अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उसके किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं। वुड यू ट्रीट द PIA एज जस्ट अ PIA, any company registered under any act of Pakistan, and you will not give money to the PIA, or again you will come under some pressure? I know you would not, but will you come under some pressure and give money to PIA which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you, Ji. Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining. तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था, वो आप बता दें। You can answer any of these and then I'll amplify. तो वो मैडम ने मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन एसओईज के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे। इस लॉ के तहत वो काम करेंगे और इस पॉलिसी के तहत। सो वो रिक्वेस्ट नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असिस्ट करेगा टू द कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और दूसरा भी दे दें। गारंटीज का भी आप बता दें थोड़ा और। जी गारंटीज का इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं कि गारंटीज का जो डेटा है वो अवेलेबल हो और उसमें क्लैरिटी हो और वंस दिस इज इन प्लेस तो यू बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा आल्सो। सो उसमें कोई ऐसा इबहम नहीं रहेगा। जैसे मैडम ने कहा कि गारंटीज का डेटा इस वक्त भी मौजूद है और आपने जो कहा था कि वो सिर्फ फॉरेक्स की नहीं वो हमारी ड्यूटी की गारंटीज भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी हैं, लेकिन ओवरऑल मैटर तो वही करता है जी नहीं दोनों ही मैटर करते हैं हमारे भी दोनों। अच्छा चलिए सारे क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंड यू हैव डन फिनोमिनल वर्क। मेरा ये एक उसूल है कि जो काम करता है उसको लीडरशिप दी जाए। सो पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे देखिए, द डिसीजन मेकिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। देयर इज़ अ लिस्ट
of privatization that is available with the Privatization Commission, and this question ought to be directed at the Privatization Commission. अब full time Minister Privatization Commission के हैं और ये list has a political backing from the past और उसमें काफ़ी सारी organizations हैं और हमने जो legal mandate दिया गया था इस government को caretaker को उसमें ये कहा गया था कि we could continue the privatization, public-private partnerships, and some of those elements are covered under, as long as these are ongoing, active in the pipeline. तो ये काम शुरू हो चुका है from the day I was handling that portfolio, but आपको पता होगा कि privatization commission जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के पास होता था. इट वाज नॉट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिवीजन और तो मेरे जो 3 पोर्टफोलियोज हैं. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन फुल टाइम मिनिस्टर. और चूँकि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, आप उनको भी सवाल कीजिएगा इसका. स्टेट गारंटीज़ आर अ रियलिटी, but there are limits on the state guarantees imposed by the IMF, and we are well within those guarantees. जो strategic versus non-strategic की decision कौन करेगा? देखिए वैसे तो if you pick up the list you can make up your mind in a minute what is strategic and what's non-strategic. इसके लिए कोई magic solution नहीं है, but the matter of strategic and non-strategic proposal will be developed based on sound criteria by the State-Owned Enterprise Department of the Ministry of Finance in consultation with relevant ministries. It is not a fully empowered director, but इनका काम है teamwork with the ministries. और once वो हो जाएगा, then it will go to the cabinet subcommittee on SOEs. अच्छा, उसके बाद आपने ये PSQ का क्या कहा था? PSQ मैंने लिखा हुआ है. किसी का सवाल मैंने भूल गई हूँ. PI का मैं बात. मैडम वो था कि अभी भी कई SOEs हैं जिनके जो heads हैं वो secretaries भी बने हुए हैं, chairman भी हैं, CEOs भी हैं. देखिए, now this will all be under review, but you need to understand when government has a shareholding or the concerned ministry is in charge of that SOE, तो in accordance with the shareholding of कुछ ऐसी ministries, कुछ ऐसी SOEs होंगी जो बहुत heavily owned है by निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात. वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत और बहाली और तामीर नौ और जनीवा कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया. तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से मौसमियाती मालियाती वादों की तकमील की अहमियत पर जोर. पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए तरक्की पजीर मुल्कों में सरमायाकारी को फ़रोग देना होगा. तरक्की पजीर मुल्कों को कर्ज़ों के मसाइल से निजात और माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए. पायदार तरक्की अहदाफ से मुतालिक सरबराह इजलास में दी जाने वाली यकीन दहानियों पर